We have discussed Karl Marx historical materialism. We have discussed alienation. We have discussed mode of production. Yes, any doubt with respect to these topics? नहीं, घर जाके read किया भी था या नहीं? Okay. So today last topic with respect to Karl Marx is class struggle. Now the question is, what do you mean by class? Socio-economic strata is a class. Okay. That means you are classify class on the basis of socio-economic strata. Okay. Any other? Can we say a class is a group of individuals? Yes. A class is a group of individuals or people sharing common interest or common relations with labor और प्रोडक्शन. बेसिकली यही तो क्लास है, जो लेबर और प्रोडक्शन के साथ एक कॉमन रिलेशन डेवलप कर रहे हैं. वो जो रिलेशन डेवलप कर रहे हैं वो एक क्लास हो गई और बाकी दूसरे क्या हो गए, दूसरी क्लास हो गई. राइट. कॉमन इंटरेस्ट, रिलेशन तो सब शेयर कर रहे हैं, लेकिन जिनका इंटरेस्ट कॉमन है वो हो गए आपके एक क्लास, और जिनका इंटरेस्ट कॉमन नहीं है दैट इज कंसिडर अनदर क्लास. दैट मीन्स क्लास इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और पीपल शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट with respect to production or labor. Yes, write down a definition. A class is a group of people. A class is a group of people sharing common relations to labor, common relations to labor and means of production. Example, lord and serfs, they are maintaining relation. These are a group of people, individual common interest. इनका common interest to earn profit or to dictatorship. इनका common interest to earn wages, right, or to do labor. दोनों का common interest, तो शेयर कर रहे हैं रिलेशंस. सो लॉर्ड एंड सर्फ. सिमिलरली बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट. यस. सिमिलरली मास्टर्स और स्लेव्स. यस. दीज आर द क्लासेस. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ क्लास इमर्ज. क्लास इमर्ज कैसे हुई? As we all are aware, we have discussed this multiple times. There were a primitive class. In primitive class, there were no inequality. No inequality, no classes were present during the primitive times, right? Then in primitive, gradually the concept surplus production has been increased. Yes, the concept of surplus production take place. Because of this, the next class emerges is ancient class. Or in ancient class, again ancient society. And in ancient society, emergence of two class, masters and slaves. Yes. Then in later ancient, the concept of private property. And because of this private property, a new class emerged, that is feudal society. And in feudal society again there are two classes. कौन कौन सी थी? Yes, lords and serfs. क्लियर है ना? ये काफी बार बता चुकी हूँ. Lord and serfs. Then again in
लेटर फ्यूडल सोसाइटी, क्या आया प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाद? इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री, उसकी वजह से क्या इमर्ज हुआ आपकी? कैपिटलिस्ट सोसाइटी. And in capitalist society, again there are two classes, the bourgeois class and the proletariat class. This bourgeois class also called as haves. That means those class who have a power, who have a control over the authority, right? Then haves, and this is considered as haves not, right? और इसी को कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं ऑनर्स एंड नॉन ऑनर. इसी को कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट, यही हैव्स नॉट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑनर, नॉन ऑनर. ऑनर हु हैव अ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग और हु हैव अ राइट्स, और नॉन ऑनर जिनके कोई राइट्स नहीं, राइट? यहां तक क्लियर दैट हाउ क्लास इमर्ज. नाउ यहां तक क्लियर हाउ क्लास इमर्ज. नाउ द क्लास ऑनर एंड नॉन ऑनर. Honor class who have rights, who have authority, who have control. Non-honor जिनमें इनके पास कोई भी चीज नहीं है, they are just a worker और labor class. ठीक है? Now the thing is how the clash began. इन लोगों के बीच में clash कैसे begin हुए, start कैसे हुए? This class and this class. ये जो क्लास था अपना मेंटेन करना चाहेगा हर चीज, राइट? डोमिनेशन है, कोई अपना डोमिनेशन छोड़ना चाहेगा नहीं. सिमिलरली नॉन ऑनर क्लास एक टाइम तक तो चलती रही, उनको कुछ भी नहीं था, दे आर लाइक नॉर्मल. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स एंड ट्रू कॉन्शियसनेस. फॉल्स एंड ट्रू कॉन्शियसनेस. फॉल्स कॉन्शियसनेस, जब तक इस क्लास को कॉन्शियसनेस थी बट वो कॉन्शियसनेस फॉल्स थी, तब तक तो कोई स्ट्रगल नहीं था. लेकिन जैसे ही इस क्लास को ट्रू कॉन्शियसनेस जनरेट हुई, इन दोनों के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए. उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो अंदर आगे फर्दर क्लास डेवलप हुई फॉल्स कॉन्शियसनेस. फॉल्स कॉन्शियसनेस मींस कि उनको खुद की कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी. दे वर लाइक कि वो ऑनर है तो वो सब कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फैक्ट्री लगाने में, तो प्रॉफिट उनके पास जाना चाहिए. हमारे पास हम लेबर है, हमें जितना मिल रहा है हमारी नीड उतना इनफ है. समझ रहे हो? तो वो हमें कुछ गलत नहीं है इस चीज में, तो वो इस चीज में थे. दैट इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस. अरे भाई, ऑनर अगर अपनी कंपनी फैक्ट्री में पैसा लगा रहा है, उसके पास पैसा है इसलिए लगा रहा है, लेकिन वो भी एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लगा रहा है ना, बिना रिस्क के तो नहीं लगा रहा. दैट रिस्क इज ऑल्सो अ कैलकुलेटिव. तो वो जो पैसा लगा रहा है, लेकिन उसमें काम कौन कर रहा है? काम तो लेबर कर रही है ना. तो लेबर, प्रोडक्शन लेबर कर रही है, तो लेबर का भी तो राइट्स बनता है प्रॉफिट पे, लेबर का भी तो राइट बनता है बेसिक चीजों पे. लेकिन ऐसा नहीं. तो फॉल्स कॉन्शियस वाले बोल रहे थे नहीं, जो चल रहा है वो ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऑनर इज नॉट राइट, नॉट रॉन्ग. ठीक है? तो यहाँ पे सॉलिडेरिटी नहीं थी, हर किसी का अपना ओपिनियन था, अलग अलग ओपिनियन, उसके अकॉर्डिंग सब ठीक चल रहा था. देन विथ टाइम ट्रू कॉन्शियस जनरेट हुई. ट्रू कॉन्शियस मीन्स कि जो सोसाइटी में ये जो हो रहा है, द इनइक्वालिटी बिटवीन द ऑनर एंड द नॉन ऑनर, ये क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम. कैसे? ठीक है, ऑनर को प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्ट तो हम बना रहे हैं ना, हम बना रहे हैं, ऑनर पे पैसा था इसलिए ऑनर ने पैसा लगा दिया, लेकिन उसके पीछे काम कौन कर रहा है? काम तो हम कर रहे हैं ना. तो जो प्रॉफिट हुआ है, कम से कम थोड़ा ऑनर को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए. हमें भी, हम कब तक गरीब के गरीब रहे, हमारा भी तो ऑनर तो और पैसा वाला होता जा रहा है, राइट? लेकिन क्या हमारा स्टेटस इंप्रूव हो रहा है? नहीं. ये चीज हो गई ट्रू कॉन्शियस. उनको रियलाइज हो गया
कि जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारा स्टेटस भी तो इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन हमारा स्टेटस इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और जो पैसा लगा रहा है उसका तो स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है, वो और पैसे वाला हो रहा है, लेकिन हमारा स्टेटस सेम की सेम है। दैट इज कंसिडर एज ट्रू कॉन्शियसनेस। कॉन्सेप्ट क्लियर? फॉल्स और ट्रू। तो इन दोनों के बीच जब ये चीज हुई, तो जहां पर फॉल्स कॉन्शियसनेस है, दैट इज योर कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ दिस। कार्ल मार्क्स दो अदर क्लासेस की भी बात करता है, दैट इज योर क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि जो क्लास इन इटसेल्फ थी, यहां पे दे डोंट हैव कॉन्शियसनेस, यहां पे उनके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी, समझना। और थी भी तो क्या थी? फॉल्स कॉन्शियसनेस। दैट मींस क्लास इन इटसेल्फ डोंट हैव कॉन्शियसनेस। इवन दे डोंट हैव अ क्लास सॉलिडरिटी, यूनिटी नहीं थी, क्लास सॉलिडरिटी नहीं था, ठीक है। इवन ये जो क्लास इन इटसेल्फ बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी थी वो टोटल इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं, अदर भी फीचर्स, मतलब सब कुछ इंक्लूड। दैट मींस द क्लास इन इटसेल्फ आर नॉट फुली, ये जो क्लास इन इटसेल्फ आर नॉट फुली अवेयर अबाउट देयर सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन। सिंपल सी बात है, क्लास इन इटसेल्फ, दो क्लास डिवाइड हो गई, जब क्लास डिवीजन हुआ तब क्रिएट हुए क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ वो क्लास थी जिनके पास फॉल्स कॉन्शियसनेस था। फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है वो ठीक है, ठीक है। दैट मींस ना तो उनके पास क्या थी? कॉन्शियसनेस थी, ना उनके पास सॉलिडरिटी थी, और ना ही वो एक्चुअल उनकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में अवेयर थे। जब तो कहीं ना कहीं लिंक नहीं कर सकते कि अवेयर नहीं थे इसीलिए सॉलिडरिटी नहीं थी, और इसीलिए क्या था? फॉल्स कॉन्शियसनेस था। क्लियर? दैट इज कंसीडर योर क्लास इन इटसेल्फ। क्लियर? क्लास इन इटसेल्फ थी तब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कुछ चीज नहीं थी, बट विथ टाइम मॉडर्नाइजेशन केम, जब मॉडर्नाइजेशन आया या इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, क्लास फॉर इटसेल्फ, ये क्लास इन इटसेल्फ हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास फॉर इटसेल्फ लोगों में क्या आई? कॉन्शियसनेस आई रिगार्डिंग उनके राइट्स, उनकी हर चीजों के बारे में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अब जो चीज हुई वो क्या हुई? ट्रू कॉन्शियसनेस। उनको आइडिया आ गया इस चीज, आइडिया इन द सेंस उनको ये रियलाइज हो गया कि ये जो सिस्टम है ये इनइक्वालिटी है, राइट। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पैसा होता तो हम भी क्या करते? फैक्ट्री खोलते, सीधे हम काम क्यों करते, राइट। और उनके पास पैसा था, उन्होंने फैक्ट्री खोली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा प्रॉफिट ही उन्हीं का है। काम तो हम कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? क्लास फॉर इट्स, उनको कॉन्शियसनेस आ गई। फिर साथ ही साथ जब कॉन्शियसनेस आ गई तो सॉलिडरिटी भी आ गई। यस, और सॉलिडरिटी के साथ साथ क्या हो गया? दे वर अवेयर अबाउट देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। जो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, अब उनको समझ आ गई कि ना तो सोसाइटी में हमें इक्वल स्टेटस मिल रहा है, ना सोसाइटी में हमें इक्वल कंट्रोल है रिसोर्सेज पे। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वही हमारा नहीं है। हम कितना भी अच्छा काम कर ले, तो अगर हम काम अच्छा कर रहे हैं तो देखो उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और अगर हम काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम किसमें है? इंडिविजुअल में है। होता है ना, पेपर निकल जाए तो सबकी मेहनत है, और पेपर नहीं निकले तो इंडिविजुअल की गलती है, होता है। वही चीज यहाँ थी, उनको ये चीज अवेयर हो गई, इस चीज, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। मतलब हर चीज के बारे में उनको समझ में आने लगा कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो कंपनी की प्लानिंग अच्छी है, क्रेडिट किसको जा रहा है? कंपनी को जा रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है या कुछ भी निगेटिव चीज हो रही है तो इंडिविजुअल पे, किस पे? लेबर पे आ रही है, राइट। तो ये वो चीज उनको समझ में आ गई। जब ये समझ में आ गई तो उनको ये समझ में आ गया दैट क्लास इन इटसेल्फ हैज बीन चेंज्ड इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ। यहां तक क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से क्लास इन इटसेल्फ हैज बीन चेंज्ड इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ? ये भी तो होगा, कुछ फैक्टर्स तो होंगे ना जिसकी वजह से ये सोसाइटी चेंज हुई। क्लास इन इटसेल्फ हैज बीन चेंज्ड इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ।
यस। इसमें क्या हुआ, एक तो जो कार्ल मार्क्स क्लासेस बात कर रहे थे, फैक्टर्स की बात करें पहले, फैक्टर से पहले एक चीज समझो, कार्ल मार्क्स जो बात कर रहे थे क्लासेस, कार्ल मार्क्स हैज गिवन 7 टाइप्स ऑफ क्लासेस। वो टॉपिक वहीं पे रुको, यहां आओ पहले। 7 टाइप्स ऑफ क्लासेस कार्ल मार्क्स ने, इनकी बुक का नाम लिखो जिसमें इन्होंने क्लासेस का नाम दिया है। पैम्पलेट थी ये, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी, जिसमें कार्ल मार्क्स बात करते हैं 7 टाइप ऑफ क्लासेस। Karl Marx in his book, in his pamphlet Revolution and Counter-Revolution in Germany, talk about 7 type of classes. They were feudal landlord, bourgeois, pretty bourgeois, rich peasants, poor peasants, proletariat and lumpen. ठीक है? Then Karl Marx considered that because of the process of polarization and pauperization, because of the process of polarization and pauperization, this 7 class convert into 2 class. That is, first is honor and another one is non-honor. That means honor and non-honor, bourgeois and proletariat. बेसिकली कार्ल मार्क्स ने इतनी सारी क्लासेस दी, लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना यह था कि कुछ प्रोसेस है, जैसे कि पोलराइजेशन, पॉपराइजेशन क्या होता है बताऊंगी। उनके थ्रू क्या हो गया, क्लासेस एक दूसरे में मर्ज होती चली गई और लास्ट में 2 ही क्लासेस बचेंगी। दैट इज योर बुर्जुआ क्लास जो ऑनर होंगे और दूसरे जो लेबर होगी दैट इज योर प्रोलेटेरिएट क्लास। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? पोलराइजेशन क्या हुआ, बुर्जुआ, पिटी बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट क्लास। ठीक है। पिटी बुर्जुआ बेसिकली आर द मिडिल क्लास। ठीक है। पोलराइजेशन, अब सपोज कोई एक फैक्ट्री ओपन की, ठीक है। अब फैक्ट्री हर तरीके की होती है, छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री, राइट? यस और नो? सब तरीके की होती है। अब यहां पर जो बुर्जुआ है ये तो हो गए बड़े फैक्ट्री के मालिक, ऑनर ऑफ द बिग फैक्ट्री। पिटी बुर्जुआ नॉर्मल मिडिल क्लास, जिनकी छोटी मोटी फैक्ट्री चल रही है। प्रोलेटेरिएट लेबर क्लास। अब यहां पे क्या होगा, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रॉफिट ही बढ़े, नुकसान भी होगा। तो जो प्रिटी बुर्जुआ है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कुछ तो प्रॉफिट गेन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ का स्टेटस बढ़ेगा, कुछ का स्टेटस नहीं बढ़ेगा। तो जिनका जो अपने आप को कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेंगे उनका स्टेटस बढ़ जाएगा। दैट मींस कुछ पिटी बुर्जुआ तो क्या बन जाएंगे, बुर्जुआ, और बाकी के बुर्जुआ और बड़े बुर्जुआ। दैट मींस ये जो कैटेगरी है इसमें से कुछ निकल के इसमें पहुंच जाएंगे, वो एक कैटेगरी बन जाएगी आपकी बुर्जुआ कैटेगरी। जो अपना स्टेटस और ये सब चीजें मेंटेन नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। कई बार फैक्ट्री फेल हो गई, अब वो प्रॉपर गरीब वाली सिचुएशन में आ गए, वो किस में आ जाएंगे, वो आपके पिटी बुर्जुआ में आ जाएंगे, राइट? तो ये क्लास खत्म हो गई। कौन सी क्लास? फिर 2 ही क्लास हुई, दैट मींस पोलराइजेशन हो गया,
इस क्लास का इसमें और इसमें क्या हो गया, पोलराइजेशन। दैट मीन्स ये जो पिटी बुर्जुआ क्लास थी वो बुर्जुआ में मिल गई, उसको बोला गया बुर्जुआइजेशन, बुर्जुआइजेशन। और जो क्लास पिटी बुर्जुआ से प्लोरिटेरिएट की तरफ आ गई उसको बोला गया प्लोरिटेरिएटाइजेशन। यस, और इसी को बोला जाता है क्या, पोलराइजेशन। दैट मीन्स अब ये पिटी बुर्जुआ क्या, मल्टीपल क्लासेस जो हमने बीच में अभी पढ़ी, इधर जो हमने पढ़ी है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, राइट। यही हमने क्या किया, इन्हीं क्लासेस, जो क्लासेस अपना स्टेटस बढ़ाती गई वो ऊपर पहुंचती गई, जिनका स्टेटस डाउन इकोनॉमी या किसी भी बेसिस पे वो नीचे आती गई, और आते आते क्या हो गया, क्लास एक दूसरे में मर्ज हो गई, और मर्ज होते हुए दैट मीन्स पोलराइज्ड हो गई, और पोलराइज्ड होते होते लास्ट में दो क्लास बचेंगी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। The one is bourgeois class and the second is the proletariat class, और इसी को बोला जाता है polarization। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट इज पॉपराइजेशन। पॉपराइजेशन क्या होता है, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट इज पॉपराइजेशन। पॉपराइजेशन क्या होता है, आप देखो यहां पे प्रोलिटेरिएट क्लास एंड द लंपन क्लास। प्रोलिटेरिएट क्लास वो क्लास है जिसमें लोगों के पास राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट इज लाइक अ लेबर क्लास, ठीक है। जब ये सब चीजें होंगी, प्रोलिटेरिएट स्टेटस अप और डाउन, जब बुर्जुआ में भी तो कुछ लोग बड़े बुर्जुआ बन रहे थे ना, तो इस प्रोलिटेरिएट में भी तो कुछ लोग और लोअर जाएंगे, राइट। दैट मीन्स जो गरीब थे यहां पे पुअर, वो क्या हो गए, और पुअर हो गए, और पुअर हुए तो सोसाइटी ने डिसइंटीग्रेट हो गए सोसाइटी से, और पुअर हो गए, ये वर्स्ट क्लास हो गई, मतलब गरीब थे वो और गरीब चले गए, इसी को बोला गया है पॉपराइजेशन। जो ऑलरेडी गरीब थे और वो और गरीब हो गए, उसी प्रोसेस को बोला गया है पॉपराइजेशन। दैट मीन्स इनइक्वालिटी तो थी, लेकिन इनइक्वालिटी एक्सट्रीम हो गई, जो गरीब पहले से ही गरीब, अब वो और गरीब। दैट मीन्स पहले एटलीस्ट ये तो था, वेजेस मिल रही थी तो कम से कम दे कैन ईट फूड, राइट, बट अब तो वो इतने गरीब हो गए कि उनके पास खाना भी नहीं है खाने को, राइट। सो इस प्रोसेस को बोला गया है पॉपराइजेशन। क्लियर? पोलराइजेशन, एक क्लास दूसरी क्लास में मर्ज हो रही है आपस में और दो क्लास क्रिएट हो रही हैं। पॉपराइजेशन देखने में सिमिलर लग रहा है, सिमिलर नहीं है। पॉपराइजेशन जहां पर क्या है, गरीब थे वो और गरीब हो गए हैं, जिन्होंने कहा स्टेटस और डाउन चला गया, दैट इज कंसीडर एज पॉपराइजेशन। यहां तक क्लियर? क्लियर यहां तक? नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो चेंजेस आए थे, ये जो चेंजेस आए, पॉपराइजेशन क्लास, दैट मीन 7 क्लासेस हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू 2 क्लासेस, तो ये आए क्यों, क्या नीड थी, मतलब क्या चेंजेस हुए थे सोसाइटी में जिसकी वजह से ये आए। Similarly, the question जिसकी हम बात कर रहे हैं, the class in itself has been transformed into class for itself. तो क्या फीचर्स थे जिसकी वजह से, क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये चेंजेस हुए, क्या चीजें थी बताओ। बिजनेस के अंदर कंपटीशन में क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ में कैसे चेंज हो जाएगी? नहीं, पोलराइजेशन का तो मैं मान गई, मैं इसकी बात नहीं, वो तो आप सही कह रहे हो, कंपटीशन था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई थी, मैं बात कर रही हूँ जो सोसाइटी चेंज हुई क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ में, वो क्यों चेंज हुई? अवेयरनेस बढ़ी उसलिए, ठीक है। क्या? नहीं, यहां सब्सिडाइजेशन ऐड मत करो। कैपिटलिस्ट क्लास का मतलब क्या होता है, देखो मोबाइल सबके पास है, इजी एग्जांपल देते हैं, समय मोबाइल है सबके पास, आप लोग अपना रिचार्ज कहां से कराते हो? पेटीएम से, एयरटेल से, जियो से। जब ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम नहीं था तब कहां से कराते थे?
शॉप से। दैट मीन्स आपके पर्टिकुलर एरिया में कितनी सारी मोबाइल रिचार्ज की शॉप हुआ करती थी? यस, यस और नो? होती थी। आज के टाइम पे देखो तो क्या आपको ये मोबाइल रिचार्ज की शॉप मिलती है? नहीं। दैट मीन्स ये अथॉरिटी बेसिकली किसके पास आ गई? अब इन चीजों को, क्लास को पोलराइज कर करके कितनी बची? हार्डली 4-5। जियो से कर लो, एयरटेल से कर लो, पहले कितने होते थे? आइडिया भी होती थी एक सिम, राइट? आज भी है वो तो आज भी है वो, है ना? मतलब पहले अगर 10 to 20 अगर आपके पास ऑपरेटर थे तो आज कितने बचे हैं? हार्डली 4-5। दैट मीन्स पोलराइज हो गई। अब जो आ चुकी हैं वो क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है, राइट? दैट मीन्स दीज आर द, कैन यू से, दीज आर द बिग फिश। यस, और बिग फिश क्या कर रही है? ईट स्मॉल फिश। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है ये। यस, यही तो चल रहा है। बिग फिश ईट स्मॉल फिश, राइट? तो डोमिनेशन किसका रहा? इनका रहा। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे ये वर्क नहीं कर रहा है। जो बिग ऑनर थे, फैक्ट्री ऑनर थे, उन्होंने क्या किया? छोटी छोटी फैक्ट्रियों को या तो परचेज कर लिया या उनका अपने प्रोडक्ट के प्राइस डाउन कर दिए कि वो प्रॉफिट कमा ही नहीं पाई और वो क्या हो गई? बंद हो गई और दिवाला निकल गया उनका, राइट? फिर वो मार्केट से आउट। वही तो हुआ। तो क्या है? जब ये चीजें हो रही हैं तो लेबर जब वो भी समझेंगी तो वो क्लास किस में चली गई? प्रोलिटेरिएट क्लास में चली गई। अब प्रोलिटेरिएट क्लास में जाके वो किसके अगेंस्ट फाइट करेगी? बुर्जुआ क्लास। जब प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो नई क्लास इमर्ज होगी। यस, तो क्या कह सकते हैं कि इस तरीके की चीजें हुई, इसीलिए क्या हुआ? आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए और उन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ? नई सोसाइटी इमर्ज हुई। मैंने बोला इंडिविजुअल की माइंड की क्रिएटिविटी होती है। पिटी बुर्जुआ, यस, पिटी बुर्जुआ नहीं, बुर्जुआ, सॉरी, पिटी बुर्जुआ नहीं, पिटी बुर्जुआ प्रोलिटेरिएट में चले गए ना, अब वहां से, हाँ, तो प्रोलिटेरिएट। पिटी बुर्जुआ कन्वर्ट हो गए। पिटी बुर्जुआ थे तब तक उन्होंने कोई रिवॉल्ट नहीं किया, तो वो वर्ड नहीं यूज करो, लेकिन जब वो प्रोलिटेरिएट में कन्वर्ट हो गए तब उनको कॉन्शियसनेस जागी कि अब हमें फाइट करनी है उस, हाँ, एग्जैक्टली, क्लियर। देन इसके बाद बात करें, देन क्या होता है इसके साथ साथ और क्या फैक्टर था? क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ में ट्रांसफॉर्म होने का। किसी कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा है, अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी का स्टैंडर्ड बढ़ा। कंपनी के स्टैंडर्ड के साथ साथ वहां के लेबर वगैरह जो प्रॉफिट है उसमें उनका भी तो शेयर होना चाहिए। होता है ना, किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो बोनस देती है एंड ऑल। यहां पे क्या हो रहा था? कैपिटलिस्ट क्लास में कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो लेबर की, जो वर्कर की जो सिचुएशन थी वो जैसी पहले थी। अगर वर्कर को एक प्रोडक्ट बनाने पे 1 रुपए मिल रहा है, राइट, पर प्रोडक्ट, तो अगर वो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा दें, कितना भी कंपनी का प्रॉफिट हो जाए, सेम ही सिचुएशन थी। इनकी सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। जब इनकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं था तो फिर इनको कॉन्शियसनेस क्रिएट हुई कि यार ऐसे कैसे, मतलब प्रोडक्ट हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीमेंट हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये अकेला पॉइंट नहीं था, इसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी था कि इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन आ गया या रिसेशन कुछ भी हुआ, उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट आपका महंगा हो गया, आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया। अब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हुआ, दैट मींस एक्सपेंसिव रेट में नहीं, दैट मींस प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगा तो प्रोडक्ट की रेट तो वही है, लेकिन पीछे के जो रॉ मटेरियल वगैरह हैं वो क्या हो गए? उनकी कॉस्ट बढ़ गई। जब ये पेज है, सिंपल एग्जांपल समझो, ये पेज है, ये पेज आज मिल रहा है 3 रुपए का, ठीक है, फाइन। ये पेज कल भी 3 रुपए का मिल रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट थी पीछे से, रॉ मटेरियल एंड ऑल, वो सब महंगा हो गया। जब वो सब महंगा हो गया तो आज मेरा इसमें प्रॉफिट कम हुआ या ज्यादा हुआ? मेरा प्रॉफिट कम हो गया। जब मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो उस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? इस प्रोडक्ट के प्राइस तो बढ़ाऊंगा, बट मार्केट में नहीं बिक रहा तो मैं प्रोडक्ट के प्राइस तो वही रखूंगा, लेकिन लेबर की सैलरी में कट कर दूंगा मैं।
राइट? तो प्रॉफिट हो रहा है तो लेबर के माइंड में क्या आया कि जब प्रॉफिट हो रहा है तब तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन जब नुकसान हो रहा है तो वो कट कहां से रहा है? मेरी सैलरी से कट रहा है, उस प्रॉफिट के मार्जिन को बैलेंस करने के लिए। तो लेबर की कॉन्शियसनेस जागेगी या नहीं जागेगी? यस, यही वहां हो रहा था। इसीलिए क्लास इन इटसेल्फ चेंज हुई क्लास फॉर इटसेल्फ में। क्लियर? फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, सब चीजें बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ने के बाद भी लेबर को प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। तो फिर लेबर का पॉइंट कि भाई क्यों हमें क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? सब चीज बढ़ रही है, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हमने भी सीख ली टेक्नोलॉजी, तो हमारा भी तो स्टेटस होना चाहिए ना। वर्कर पूरे टाइम तक वर्कर ही रहता है, वो प्रमोट ही नहीं हो पाता किसी और पोजीशन पे, राइट? उसको प्रमोशन ही नहीं मिलता। क्यों? वर्कर है इसलिए। तो कहीं ना कहीं उनकी ये कॉन्शियसनेस जागती गई और क्लास इन इटसेल्फ हैज बीन चेंज्ड इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ। यहां तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो पूछो। इंक्रीज द प्रॉफिट, लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट बढ़ा, डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन वर्कर का कुछ भी उसमें अपग्रेडेशन नहीं हो रहा था। क्लियर? डेफिनेशन लिखो क्लास स्ट्रगल की। According to Marx, class has to be understood. Class has to be understood from point of access of property. From point of access of property, it is determined. Full stop. It is determined not by occupation or income, not by occupation or income, but by position, the individual occupy and function he perform, but by position the individual occupy and function he perform in the process of production. मार्क्स कहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स क्लियर एक बात कहते हैं कि आप जो क्लास इमर्ज कर रहे हो, किसी का स्टेटस देख रहे हो, उससे मत देखो कि वो क्या काम कर रहा है उसकी, या फिर ये मत देखो कि उनकी इनकम कितनी है। अगर आपको देखना है तो बेसिकली किससे फाइंड करो कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, और उनके अगेंस्ट में इनको देख रहे हो उनकी क्या पोजीशन है। बेसिकली पोजीशन के आधार पे बात कर रहे हैं कि उनकी पोजीशन क्या है और वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? जैसे कि हम बात करें, कचरे वाला आता है हमारे घर में, राइट, कचरा लेने के लिए। जब वो कचरा लेने आता है तो आप उसको दूर से कचरा देते हो, राइट? उसकी पोजीशन उसके काम से, क्यों? क्योंकि वो कचरा वाला है, ये बोलते हैं आप। जो इन सबका हेड होता है नगर निगम, राइट, वो भी तो कचरे से ही रिलेटेड है, फिर उसको इज्जत दी जाती है, इनको क्यों नहीं? काम तो दोनों का रिलेट तो कचरे से ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं है? सर क्यों हिला रहे हो? नहीं, ओके, काम दोनों का कचरे से रिलेटेड है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम उनकी सैलरी इनकम बेसिस पे हम उनके स्टैंडर्ड को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? जैसे एक और एग्जांपल, ब्रिक्स, एक तो ब्रिक्स ऑनर हो गया, एक ब्रिक बनाने वाला हो गया, राइट?
ब्रिक जो ईंट जो बनती है वो एक तो बनाने वाला हो गया, अगर वो बनाएगा नहीं तो ऑनर कहाँ से ऑनर बन जाएगा? ऑनर सिर्फ क्या कर रहा है, उनको एक एरिया, एक बेसिक नेसेसिटी जो नीड है बनाने के लिए वो वही चीजें तो प्रोवाइड कर रहा है। यस है तो दोनों ही जुड़े किससे हैं? ब्रिक से हैं, लेकिन आप लेबर को एक अलग उससे देखते हो और आप उसके ऑनर को एक अलग उससे देखते हो। यस तो कार्ल मार्क्स इसी की बात कर रहे हैं कि जो आप क्लास कर रहे हो, क्लास को प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप जो डिटरमाइन कर रहे हो, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कर रहे हो, इनकम के बेसिस पे कर रहे हो, इसके बेसिस पे नहीं करो, बल्कि वो जो मार्केट में पोजीशन होल्ड करे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर ब्रिक वाले हैं तो उनको एक प्रॉपर एक सेम प्लेटफॉर्म का समझो उनको, इसकी बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, तभी तो क्लास में दो क्लास जनरेट हुई, क्या? ऑनर, नॉन ऑनर, और नॉन ऑनर ऑनर दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ट्रू कॉन्शियसनेस, और उसकी वजह से कंफ्लिक्ट हुआ, देन सोसाइटी में चेंज आए। यहां तक क्लियर? चेंज, अब सुनो चेंज आया क्या है। कार्ल मार्क्स ने सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी को नहीं, कार्ल मार्क्स ने बोला कि पहले देखो एंशिएंट सोसाइटी, प्रिमिटिव में कोई क्लास नहीं थी, फिर प्रिमिटिव से चेंज आया जब जब सरप्लस का प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन हुआ तो प्रिमिटिव में चेंज आया। कौन सी सोसाइटी इमर्ज हुई? एंशिएंट सोसाइटी। अब एंशिएंट में भी दो क्लास, एक के पास आपके वो हो गए मास्टर्स, एक स्लेव, फिर इन दोनों में कंफ्लिक्ट हुए तो फिर चेंज होके नई सोसाइटी आई। कौन सी सोसाइटी आई? फ्यूडल। फ्यूडल में ऑनर हो गए लैंड और जो नॉन ऑनर थे वो हो गई आपकी सर्फ। फिर इनमें कंफ्लिक्ट हुआ, नई सोसाइटी आई दैट इज आपकी कैपिटलिस्ट। अब कैपिटलिस्ट तक तो आ गए, अब कार्ल मार्क्स, यहां तक भी कार्ल मार्क्स ने समझाया। अब कार्ल मार्क्स का मानना यह है कि अब आएगी सोशलिस्ट सोसाइटी, देन आएगी कम्युनिज्म सोसाइटी। लेकिन सब इसको यूटोपिया बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि कैपिटलिस्ट को आए बहुत टाइम हो गया, अभी तक कोई भी सोसाइटी नहीं आई है इस तरीके की, राइट। लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना यह है कि ये सोसाइटी आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है, यही तो क्रिटिक्स है उसका। क्लियर? अभी किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर? कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल यही था। क्या? जिसके एजेंट, हाँ, आपने इंडिविजुअल या फिर एक क्लास के सिचुएशन को लगा जो एक सेंचुरी में चेंजेस हो, मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर वो स्मूथ हो गया, प्रेस से रहेगी उसका हो गया, नॉलेज पास ऑन जो इन फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हो। बट जब हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो जब फ्यूडल वगैरह टाइम था, हम सिर्फ एक सोसाइटी को नहीं पढ़ रहे हैं। क्लास स्ट्रगल सिर्फ एक सोसाइटी में था क्या? नहीं, ये एंशिएंट सोसाइटी से था। क्या एंशिएंट सोसाइटी में ये सारे फैक्टर थे? नहीं थे, इसलिए मैंने वो नहीं लिए। ये आप जब स्पेसिफिक बात करोगे कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो आज के टाइम पे जितने भी मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब चीजें, प्रिंटिंग प्रेस हो गई, ये सब चीजों का रोल है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट होल। जब आप पूरी चीजों को एंशिएंट, क्या एंशिएंट में भी ये सारी चीजें थी? नहीं थी। क्या फ्यूडल टाइम पे ये सारी चीजें थी? फ्यूडल के एकदम लास्ट में धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा तब थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। लेकिन हम क्या सिर्फ स्पेसिफिक एक सोसाइटी को पढ़ रहे हैं? हम पूरे इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं। जब पूरे इवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो हम वो कॉमन फैक्टर डिस्कस करेंगे जो पूरे तीनों सोसाइटी के क्लास स्ट्रगल के लिए वर्क कर रहा है, ना कि पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट क्लास के लिए। अभी तक जो है वो के बाद में ही इसका शुरू हुआ है, उससे पहले वो जो भी है क्लास पर क्लास इन इटसेल्फ ही है, बिल्कुल। नहीं, आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट माय कंसर्न इज कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट होल चेंज, वो मेजर चेंज तो हमने मॉडर्निटी पढ़ा, मॉडर्निटी के जो जो फैक्टर थे वही तो इंक्रीज हुए। जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो भी एक फैक्टर लेकर आया क्लास फॉर इटसेल्फ के लिए। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, वो भी एक फैक्टर आया क्लास फॉर रिवॉल्यूशन के लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें कई सारे स्कॉलर्स भी आए, उनकी आइडियोलॉजी ने लोगों को प्रवोक किया, तब जाके उनको क्लास कॉन्शियसनेस इमर्ज हुई। तो वो सारे फैक्टर्स तो रहेंगे ही क्लास फॉर इटसेल्फ में, लेकिन मेजर जो फैक्टर रहेंगे जो मैंने भी आपको बताए हैं वो भी रहेंगे साथ। मेजर, कंफ्यूज मत,
क्लास इन इटसेल्फ का सिर्फ कैपिटलिज्म तक नहीं था, क्लास इन इटसेल्फ आप गलत समझ रहे हो, क्लास इन इटसेल्फ जो आपकी एंशिएंट सोसाइटी थी उसमें भी था, उसमें भी कुछ चेंजेस आए तब वो क्लास फॉर इटसेल्फ बनी। लोगों को आप कंफ्यूज, एक सेकंड मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। इधर सुनो लोग, ये क्या कह रहे हैं, ये सिंपल सी चीज है, क्लास इन इटसेल्फ सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में थी, वो एंशिएंट में भी थी, तो एंशिएंट में क्लास इन इटसेल्फ, वहां पर भी क्लास इन इटसेल्फ चेंज हुई क्लास फॉर इटसेल्फ में। नहीं, वो एक टाइम, वो फिर जब एंशिएंट में आ गई तब क्लास इन इटसेल्फ बन गई। आप समझो चीजें, ये एक एक सोसाइटी की मैं बात करूं, हर एक सोसाइटी में क्लास इन इटसेल्फ भी थी और क्लास फॉर इटसेल्फ। जब क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ में कन्वर्ट हुई तभी तो वो रिवोल्ट करेंगे, तभी तो सोसाइटी चेंज होगी। फिर अगली सोसाइटी यहां बनी, उनको लगा सिस्टम चेंज हो गया अब सब ठीक होगा, क्लास इन इटसेल्फ चल रही है फ्यूडल में, फिर उनको लगा धीरे धीरे कॉन्शियसनेस फिर जनरेट हुई, फिर क्लास इन इटसेल्फ चेंज हुई क्लास फॉर इटसेल्फ में, ऐसे ही कैपिटलिस्ट में। तो हर सोसाइटी में क्लास इन इटसेल्फ है, उसके बाद वो चेंज हो रही है क्लास फॉर इटसेल्फ में, तभी रिवॉल्यूशन हो रहा है, रिवॉल्ट हो रहा है, कॉन्शियसनेस जाग रही है और सोसाइटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और फिर से क्लास इन इटसेल्फ। सिंपल सी चीज है, आपको कोई डाउट हुआ मैंने समझा दिया, आप न्यूट्रल हो गए, ठीक है। अब क्लास चल रही है, फिर आपको डाउट हुआ तो फिर क्लास न्यूट्रल चल रही है ना, क्लास फॉर इटसेल्फ, फिर आप नॉर्मल, नया टॉपिक नॉर्मल हो आप क्लास इन इटसेल्फ, फिर आपको डाउट हुआ क्लास फॉर इटसेल्फ, यस। तो वो हर क्लास में जनरेट हो रहा था, वही है। सिमिलरली हर क्लास में जब हमने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था तो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन भी तो हर क्लास में चेंज था। फ्यूडल में लैंड था, कैपिटलिस्ट में आपका क्या था, मशीन्स थी, और एंशिएंट में आपका क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या हाँ, तो मतलब हर उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज था। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ दोनों ही चेंज होंगी कि नहीं होंगी, यहां कंफ्यूज हो रहे थे। अभी क्लियर है? Is it clear with respect to class struggle? Is it clear? Now, critics. क्रिटिक्स सबसे पहले आते हैं राल्फ डेरेनड्रॉफ। अच्छा एक चीज, सिल्विया बेल्वी की स्पेलिंग क्या होती है? एक क्या? और कोई? आप ही ने लिखी है, दो लोगों ने स्पेलिंग गलत लिखी है थिंकर्स की। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ जिसने, वो तो अभी डिस्कशन होगा, लेकिन कर क्या रहे हो? इसलिए मैं हर स्पेलिंग थिंकर्स का नाम बोर्ड पर लिखती हूँ कि भाई स्पेलिंग गलत मत लिखना, मैं भी 2 बार चेक करके लिखती हूँ, फिर क्यों कर रहे हो ये गलतियां? राल्फ डेरेनड्रॉफ बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी वो कार्ल मार्क्स के टाइम तक तो ठीक थी क्लास स्ट्रगल, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रिलीवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? तो अब आ गया क्रिटिक्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे, सोशलिज्म आएगा, कम्युनिज्म आएगा, क्या आया? नहीं, इसी की बात कर रहे थे कि सोसाइटी में कंसिडरेबल चेंजेस तो हो रहे हैं, एग्री, लेकिन कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही, लेकिन वो चेंजेस सोशलिज्म और कम्युनिज्म लेकर आएंगे ये श्योर नहीं है, हो ही नहीं रहे, आए क्या? अभी तक नहीं आए हैं। तो कार्ल मार्क्स जिन चेंजेस की बात कर रहे थे सोसाइटी में इवोल्यूशन, वो हो ही नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। दैट मीन्स लिख लो, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल may not be applicable to modern day capitalism, clear? next, Max Weber। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे, इन सब क्लासेस के पीछे किसका हाथ है? इकोनॉमिक का।
ये कह रहे थे वेबर कि नॉट ओनली इकोनॉमिक अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो रही है और स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है सोसाइटी में। लिखो, अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक बेसिस, apart from the economic basis, there are other bases of stratification in society. There are other bases of stratification in society. Next is Frank Parkin. Frank Parkin point out that classes exist even in socialistic countries. Classes exist in socialistic countries. कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में कोई क्लासेस नहीं है, क्लासेस तीन में ही है, एंशिएंट, फ्यूडल और कैपिटलिस्ट। ये बोल रहे हैं कि कई सोशलिज्म कंट्रीज हैं उनमें भी क्या है, क्लासेस हैं। ठीक है, देन आते हैं आपके लेंस्की। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे, सोसाइटी कैपिटलिज्म टूटेगा, सोशलिज्म आएगा, सोशलिज्म जाएगा, कम्युनिज्म आएगा, राइट। लेंस्की बोलते हैं नॉट नेसेसरी, हो सकता है कैपिटलिज्म टूटे और कोई दूसरी क्लास इमर्ज हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि सोशलिज्म आए। आप कैसे कह सकते हो कि सोशलिज्म आएगा, जैसे फ्यूडल सोसाइटी से आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, कैपिटलिस्ट के बाद कुछ और सोसाइटी भी तो आ सकती है। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि सिर्फ सोशलिज्म ही आएगा या कम्युनिज्म ही आएगा, राइट। लिखो, breakdown of capitalism may not lead to socialism, comma, there are other modes of production, that may emerge, क्लियर। कार्ल मार्क्स ने बात की है डिवीजन ऑफ लेबर, एलिनेशन क्या था, एस्ट्रेंजमेंट, फीलिंग ऑफ एस्ट्रेंजमेंट। लेकिन कार्ल मार्क्स ने बात तो की है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, हायरार्की इज देयर, डिवीजन ऑफ लेबर। तो कहीं पे ये समझ आ रहा है, और किसने बात की थी डिवीजन ऑफ लेबर की, एमिल डुर्कहाइम ने बात की थी। क्या कोई सिमिलरिटी या डिफरेंस है दोनों के बीच में, कार्ल मार्क्स और डुर्कहाइम के बीच में कोई सिमिलरिटी या डिफरेंस है? अच्छा ये बताओ, डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रही हूं मैं, स्पेसिफिक रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ लेबर। कार्ल मार्क्स की थ्योरी किस अप्रोच पे बेस्ड है, कैपिटलिज्म। दैट मींस कार्ल मार्क्स हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच यूज करते हैं, यस। डुर्कहाइम कौन सी अप्रोच यूज कर रहे थे, फंक्शनलिज्म, यस। राइट, देन दैट इज ट्रू, जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन मैं स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रही हूँ। आप इनका मुझे क्रक्स बता रहे हो, इनकी आइडियोलॉजी और उसकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस। मैं आइडियोलॉजी डिफरेंस नहीं पूछ रही हूँ, मैं स्पेसिफिक पूछ रही हूँ डिवीजन ऑफ लेबर के। उसमें डिवीजन ऑफ लेबर बात करूँ तो कार्ल मार्क्स क्या बात कर रहे थे, कार्ल मार्क्स छोड़ो, डुर्कहाइम तो पढ़ा ना आपने अभी,
डर्कहाइम क्या बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ लेबर में? डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में कॉपरेशन लेकर आता है या सोसाइटी को ब्रेक डाउन करता है? कॉपरेशन लेकर आ रहा है। दैट मीन्स हर किसी को मिलके काम करना होगा, कॉपरेशन बात कर रहे थे। और डिवीजन लेबर आ क्यों रहा था सोसाइटी में? स्पेशलाइजेशन और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ मोरल डेंसिटी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। डायनेमिक डेंसिटी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे थे। यस, भूल गए डर्कहाइम पूरी तरीके से? मोरल डेंसिटी की बात की थी कि नहीं की थी? तो फिर भूल क्यों रहे हो? मटेरियल डेंसिटी की बात की थी, डायनेमिक डेंसिटी की बात की थी, तो फिर इंक्रीज इन मोरल एंड मटेरियल डेंसिटी। यहां पे कार्ल मार्क्स के टाइम पे क्या हो रहा था? कार्ल मार्क्स के में डिवीजन ऑफ वो क्यों हो रहा था? अच्छा छोड़ो, कार्ल मार्क्स छोड़ो, डर्कहाइम पे आओ। डर्कहाइम क्या कह रहा था? डिवीजन ऑफ लेबर कॉपरेट करेगा सोसाइटी में या कॉन्फ्लिक्ट लेकर आएगा? कॉपरेशन लेकर आएगा, ठीक है। इट लीड टू कॉपरेशन, ठीक। जब डिवीजन ऑफ लेबर कॉपरेशन लेकर कॉपरेशन कर रहा है सोसाइटी को, वो इंटीग्रेशन कर रहा है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा सोसाइटी में? सोसाइटी में कॉपरेशन है, दैट मीन्स सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी, विच टाइप ऑफ सॉलिडरिटी की बात करेगा ये? ऑर्गेनिक। दैट मीन्स प्रेजेंट की बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर, तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी इंप्रूव होगी कि डिक्रीज होगी? इंप्रूव होगी। आर यू श्योर इंप्रूव होगी? इंटीग्रेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स इंक्रीज ही होगी। डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन हो रहा था तो सॉलिडरिटी इंक्रीज, क्योंकि एक के काम करने से कुछ नहीं होगा, सब लोग यूनिटी में चाहिए, तो एटलीस्ट फॉर वर्क दे विल कम एज अ ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। और ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था? मैकेनिकल सॉलिडरिटी। यस, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे बात करें तो कितने टाइप, कुछ टाइप वगैरह, कुछ कॉज उसने बताया था डर्कहाइम ने? कुछ जेंडर बेस्ड बोला था, कुछ अनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसा कुछ बात की थी? सोसाइटी नॉर्मलेस, आई मीन इस डिवीजन ऑफ लेबर का जो सॉल्यूशन ये दे रहे थे वो क्या था? एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, है ना? सोसाइटी नॉर्मलेसनेस हो जाए इस तरीके की। और इसी में कार्ल मार्क्स क्या बात कर रहे हैं? ये कार्ल मार्क्स क्या बात कर रहे हैं? कार्ल मार्क्स रिवॉल्ट। हम हर चीज में कार्ल मार्क्स का सॉल्यूशन क्या रहता है? रिवॉल्यूशन। कि रिवॉल्यूशन होगा तो सोसाइटी चेंज होगी, इमर्ज होगी नई सोसाइटी, फिर उस सोसाइटी में भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ये सब चीजें होंगी, राइट। और यहाँ पे क्या कह रहे थे कि जो अनोमी है, वो अनोमी की बात कर रहे थे कि अनोमी है वो क्या है? एबनॉर्मल है। वर्कर्स को कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, लेकिन रिवॉल्ट जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे थे कि रिवॉल्ट तो होगा ही, अगर दो चीजों के बीच कंफ्लिक्ट है तो रिवॉल्ट होगा। कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं इस चीज को, राइट। कॉजेस क्या? कार्ल मार्क्स की बात प्रूव हुई है, कैसे? रिवॉल्यूशन हुआ, हर सोसाइटी में रिवॉल्यूशन हुआ। अब ठीक है, वहां तक ठीक है, मान लिया, लेकिन अब कार्ल मार्क्स ने ये भी बोला था कि सोशलिज्म आएगा, कम्युनिज्म आएगा। नहीं, वहां तक ठीक है, कार्ल मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कार्ल मार्क्स ने आगे, यही तो थिंकर्स उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ठीक है कुछ हद तक सही निकली चीजें, लेकिन अब जो कार्ल मार्क्स ने इवोल्यूशन में बताया कि आगे की सोसाइटी में कम्युनिज्म और सोशलिज्म आएगा, वो तो आया ही नहीं ना। तो इट इज जस्ट एन यूटोपिया कॉन्सेप्ट, कुछ था ही नहीं उनके कॉन्सेप्ट में, राइट। देखो उसमें इधर
ये कॉपरेशन के इधर लिखना, leads to unequal relationship, leads to unequal relationship which legitimize haves and haves not. Right? Next इसमें लिखो इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी के इधर, it lead to dehumanization of worker, it lead to dehumanization of worker and alienation in industrial society. Leads to dehumanization of worker and alienation in industrial society. डिवीजन ऑफ लेबर का यही तो हो रहा था, एलिनेशन ही तो हो रहा था. नेक्स्ट लास्ट में लिखो अनोमिक की रिवॉल्यूशन लिख लिया. ठीक, सॉल्यूशन क्या है इसका, सिर्फ रिवॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन. ऊपर लिखो इंक्रीज इन मोरल डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी, उसी में आगे लिखना इंक्रीज इन मोरल एंड मटेरियल डेंसिटी फुल स्टॉप. स्पेशलाइजेशन मेक इट पॉसिबल फॉर harmonious coexistence. Harmonious coexistence इधर लिखो मार्क्स में. Marx does not see it as a means of cooperation and coexistence. Cooperation and coexistence. He view it as a process forced upon worker in order to let capitalists extract profit. हाँ वो भी हो सकता है. डिफरेंस इज क्लियर. सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटीज क्या थी दोनों के डिवीजन ऑफ लेबर में. दोनों ही मार्क्स भी जब पढ़ रहे थे सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी की बात की थी मार्क्स ने. उस टाइम पे मार्क्स बोल रहे थे कोई क्लास नहीं था, मतलब कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, इगैलिटेरियन सोसाइटी. डर्कहाइम भी बात कर रहे थे जब ट्रेडिशनल सोसाइटी की. डर्कहाइम क्या बोल रहे थे, डिवीजन ऑफ लेबर इज लो और नो डिवीजन ऑफ लेबर. राइट, तो दोनों ही कह रहे थे कि प्रिमिटिव सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है. दोनों ही बात कर रहे थे इक्वालिटी है, दैट मींस वो भी बात कर रहे थे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडरिटी वर हाई. राइट, और ये भी बात कर रहे हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी में सॉलिडरिटी हाई थी. क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी ही नहीं थी. इज इट क्लियर. तो दोनों ही सेम बात कर रहे थे, क्रक्स दोनों का सेम था, लेकिन विथ टाइम कैपिटल सोसाइटी तक आते आते दोनों की थॉट प्रोसेस बदल गई. ठीक है, दिस इज अबाउट द कार्ल मार्क्स. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Tomorrow you will get the handout with respect to Karl Marx. कोई क्वेश्चन है? अभी तक जितनी भी क्लास हुई है हमने यूनिट किंग सिस्टम ऑफ किंगशिप, देन आपका मॉडर्निटी, देन कार्ल मार्क्स एंड डर्कहाइम, यही हुए. कोई दिक्कत किसी को भी किसी भी टॉपिक में? हैंडआउट रीड कर रहे हो साथ ही साथ? समझ आ रहे हैं हैंडआउट्स? अब हैंडआउट समझ आ रहे हैं